Shut up and sit down. Values and the silent features of the Constitution. मूल्य तथा संविधान की प्रमुख विशेषताएं. The discussion on the preamble embodying constitutional values clearly demonstrates that these are important for the successful functioning of Indian democracy. प्रस्तावना में निहित संवैधानिक मूल्यों के अब तक के विवरण से यह स्पष्ट है कि यह भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है. Your understanding of these values will be further reinforced when you will find in the following discussion that constitutional values permeate all the silent features of the Indian Constitution. हर मूल्य के बारे में आपकी समझ और भी अधिक अच्छी होगी जब आप नीचे की गई चर्चा में यह पाएंगे कि संवैधानिक मूल्य भारतीय संविधान की सभी प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त है. The main features of the Constitution, as shown in the illustrations, are as follows. भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं. तो पहला यहाँ पे दिखा रहा है written constitution. Written constitution, लिखित संविधान. As has been stated earlier, the Constitution of India is the longest written constitution. जैसा कि हमारे आगे के वीडियोस में आपको बताया गया था कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है. It contains a preamble, 395 articles in 22 parts, 12 schedules and 5 appendices. इसमें प्रस्तावना 22 भागों में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 5 परिशिष्ट हैं. It is a document that define the nature of the political system and the structure and functioning of organs of the government. ये मौलिक कानून का दस्तावेज है जो राजनीतिक पद्धति के प्रकृति तथा सरकार के अंगों की संरचना एवं क्रियाशीलता को परिभाषित करते हैं. It expresses the vision of India as a democratic nation. यह भारत की एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की व्यापक दृष्टि से अभिव्यक्त करता है. It also identifies the fundamental rights and fundamental duties of citizens. While doing so, it also reflects core constitutional values. यह नागरिकों के मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट करता है तथा ऐसा करते हुए उनमें केंद्रीय संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है. 2. A unique blend of rigidity and flexibility. अनमनशीलता तथा नम्नशीलता का अनोखा मिश्रण. In our day-to-day life, we find that it is not easy to bring about changes in written document. हमारे दैनिक जीवन में हम यह अनुभव करते हैं कि लिखित दस्तावेजों में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता. As regards constitutions, generally written constitutions are rigid. जहाँ तक संविधान की बात है, लिखित संविधान सामान्यतः अनमनशीलता होते हैं. It is not easy to bring about changes in them frequently. उनमें बार बार परिवर्तन करना आसान नहीं होता है. The Constitution lays down a special procedure for constitutional amendments. संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान होता है. In the unwritten constitutions like British Constitution, amendments are made through ordinary law-making procedure. ब्रिटिश संविधान जैसे अलिखित संविधानों में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किए जाते हैं. The British Constitution is a flexible constitution. देखिए, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश संविधान, वह फ्लेक्सिबल है. It is the written constitution like the US Constitution. It is very difficult to make amendments. लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लिखित संविधानों में संशोधन करना
बदलाव करना, अमेंडमेंट करना कठिन होता है। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र का संविधान है, इसको बदलना कठिन है। However, the Indian constitution is neither as flexible as the British constitution nor as the US constitution. हालांकि भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह नमनशील है, न ही अमेरिकी संविधान की तरह अनमनशील। इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसमें निरंतरता के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। There are three ways of amending the Constitution of India. भारतीय संविधान में 3 तरीके से बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। Some of its provisions can be amended by the simple majority in the parliament and some by special majority, while some amendments require special majority in the parliament and approval of states as well. अब देखिए, कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत के समर्थन से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा तीसरी श्रेणी के प्रावधानों के संबंध में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। You must be familiar with the term fundamental rights. आप मौलिक अधिकार fundamental rights पद से परिचित होंगे। We quite often find it in newspapers or while watching television. भारतीय संविधान के बारे में ये जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में हम लोग समाचार पत्र या टेलीविजन में हम लोग देखते होंगे इसको। The Constitution of India includes these rights in a separate chapter which has often been referred to as the conscience of the Constitution. इस अध्याय को भारतीय संविधान का अंतःकरण कहा जाता है और इसके लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया है। Fundamental rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा शक्ति के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। The Constitution guarantees the rights to individuals against the state as well as against other individuals. संविधान नागरिकों को राज्य के विरुद्ध और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। The Constitution also guarantees the rights of minorities against majority. संविधान अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी भी प्रदान करता है। Besides these rights, the Constitution has provisions identifying fundamental duties, though these are not enforceable as the fundamental rights are. These duties reflect some of the basic values embodied in the Constitution. अब देखिए, इन अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है। ये मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। फिर आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक अन्य अध्याय है जिसका नाम राज्य के नीति निदेशक तत्व है। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। इट इज एम्ड एट इंश्योरिंग ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स and serving as a guide to the state of institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses and eliminate the social discrimination. In fact, as you will study in the lesson on India, a welfare state, these provisions are directed towards establishment of a welfare state. ध्यान से समझिएगा।
राज्य के नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक अन्य अध्याय है जिसका नाम राज्य के नीति निदेशक तत्व है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। यह इस बात की को सुनिश्चित करता है कि भारत में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जाएं। साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य को ऐसी नीतियां तथा ऐसे कानून बनाने का निर्देश देते हैं जिनसे जनता में गरीबी घटे तथा सामाजिक भेदभाव समाप्त हो। जैसा कि आपने भारत एक कल्याणकारी राज्य, इंडिया अ वेलफेयर स्टेट नामक पाठ में पढ़ा है। भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन प्रावधानों का लक्ष्य है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत न्याय व्यवस्था। Unlike the judicial system of federal countries like the United States of America, the Indian Constitution has established an integral judicial system. संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघात्मक व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्था के विपरीत भारत एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। Although the Supreme Court is at the national level, high courts at the state level, and subordinate courts at the district and lower level, there is a single hierarchy of courts. अब देखिए, यहाँ राष्ट्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला एवं निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है, लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम हायरार्की के अंग हैं। At the top of the hierarchy is the Supreme Court. इस पदानुक्रम हायरार्की में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। This unified judicial system is aimed at promoting and ensuring justice to all the citizens in uniform manner. अब देखिए, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान तरह से न्याय दिए जाने को सुनिश्चित करना है। Moreover, the constitutional provisions ensure the independence of Indian judiciary, which is free from the influence of the executive and the legislature. इन व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि यह एकीकृत न्यायपालिका कार्यकारिणी तथा विधायिका के प्रभावों से मुक्त होती है। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर सिंगल सिटीजनशिप। भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? क्या आप इसका मतलब समझते हैं? It means that every Indian is a citizen of India, irrespective of the place of his or her residence or birth in the country. इसका अर्थ है कि भारत में सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो या वे कहीं भी रहते हो। This is unlike the United States of America, where there is the system of double citizenship. यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था से अलग है, जहां दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। A person is a citizen of a state where he or she lives as well as he or she is a citizen of USA. देखिए, जहां बोल रहा है व्यक्ति का किसी एक राज्य का नागरिक है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वह दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। वहाँ का व्यक्ति किसी एक राज्य का नागरिक है जहाँ वह रहता है, साथ ही वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। This provision in the Indian Constitution definitely reinforce the values of equality, unity and integrity. भारतीय संविधान द्वारा दी गई एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, निश्चित रूप से समानता, एकता और अखंडता के मूल्यों को की समझ बनाती है। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। The value of equality and justice are reflected in yet another silent feature of the Constitution. Every Indian,
after attaining certain age, at present 18, has a right to vote. No discrimination can be made on the basis of religion, race, caste, sex, descent, and place of the birth or residence. This right is known as universal adult franchise. समानता तथा न्याय के मूल्य की तरह संविधान की एक अन्य विशेषता सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित उम्र, जो अभी 18 है, हो जाने के बाद मतदान का अधिकार अधिक प्राप्त होता है। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। फेडरल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार। Another silent feature of the Indian Constitution is that it provides for a federal system of state and parliamentary form of government. भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। We shall discuss these below in detail. इनके संबंध में हम व्यापक चर्चा आगे के वीडियोस में करेंगे। But it is necessary to note here that the federal system reflects the constitutional value of unity and integrity of the nation, and more importantly, the value of decentralization of power. लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि संघीय व्यवस्था में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के संवैधानिक मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। साथ ही इसमें शक्ति के विकेंद्रीकरण का मूल्य भी निहित है। The parliamentary form of government reflects the value of responsibilities and sovereignty vested in the people. The core principle of a parliamentary government is the responsibility of the executive to the legislature, consisting of the representative of the people. सरकार के संसदीय स्वरूप में जनता में निहित उत्तरदायित्व और संप्रभुता के मूल्य प्रतिबिंबित है। संसदीय प्रणाली का केंद्रिक सिद्धांत जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली विधायिका के प्रति कार्यकारिणी का उत्तरदायित्व करती है।